Greetings in the great and glorious name of the Lord Jesus Christ. मसीह यस्सु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। My heart is filled with the gratitude that God is here. मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है क्योंकि वो यहाँ पर तख्त नशीन है। And I give thanks to God for the church of Narrowgate Church, this premises. और मैं खुदा का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ नैरोगेट चर्च के लिए, इस जगह के लिए। Because God is giver and He has given this place. क्योंकि खुदा जो है वो यहोवा यरी है और उसी ने ये जगह दी है। He is almighty and He is a wonderful God. वो कवी कादिर और अजीम खुदा है। And His hand is stretched to His people and He gave them. और उसका हाथ जो है वो देने वाला है और वो अपने लोगों को बख्शता है। And He is a giver and He is giving as we have need. और वो यहोवा यरी है और वो देने वाला है, जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो हमें बख्शता है। I'm thankful to God for this warm welcome. और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और आप सबका इस वेलकम के लिए। And the love which you have manifested by welcoming warmly. और ये जो मोहब्बत और शफकत से आपने वेलकमिंग की है हमारी, उसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। And I know we are nothing, but our God is able for the honor and glory. और मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरा खुदा जो है वो ही तारीफ तमजीद के लायक पाक खुदा है। And glory belongs to God. और जलाल जो है वो खुदा का है। Because He is a glorious God. क्योंकि वो जलाली खुदा है। And through His glory He is fulfilling all our needs. और अपने जलाल के मुताबिक वो हमारी तमाम जरूरियात को पूरा करता है। We will read First Chronicles chapter 29. हम पढ़ेंगे पहला तवारीख उसका 29वां बाब। First Chronicles chapter 29, first words. पहला तवारीख 29वां बाब उसकी पहली आयत। Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon, my son, whom alone God has chosen, is yet young and tender, and the work is great, for the palace is not for men, but for the Lord God. और दाऊद बादशाह ने सारी जमायत से कहा कि खुदा ने फक्त मेरे बेटे सुलेमान को चुना है, और वो हनूज लड़का और ना तजर्बाकार है, और काम बड़ा है, क्योंकि वो महल इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदावंद खुदा के लिए है। Now I have prepared with all my might for the house of my God, the gold for the things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass for things of brass, the iron for things of iron, and wood for things of wood, onyx stones and stones to be set, glittering stones and of divers colors, and all manners of precious stones and marble stone in abundance. और मैंने तो अपने मकदूर भर अपने खुदा की हैकल के लिए सोने की चीजों के लिए सोना, और चांदी की चीजों के लिए चांदी, और पीतल की चीजों के लिए पीतल, लोहे की चीजों के लिए लोहा, और लकड़ी की चीजों के लिए लकड़ी, और अतीक और जड़ाव पत्थर, और पच्ची के काम के लिए रंग बरंग के पत्थर, और हर किस्म के बेशकीमत जवाहर, और बहुत सा संगे मरमर तैयार किया है। Moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of my own proper good of gold and silver, which I have given to the house of my God
over and above all that I have prepared for the holy house. और चूंकि मुझे अपने खुदा के घर की लो लगी है और मेरे पास सोने और चांदी का मेरा अपना खजाना है, सो मैं उसको भी उन सब चीजों के अलावा जो मैंने उस मुकद्दस हैकल के लिए तैयार की हैं, अपने खुदा के घर के लिए देता हूँ। Even 3,000 talents of gold of the gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver to overlay the walls of the houses withal. यानी 3,000 किंतार सोना और ओफेस का सोना है और 7,000 किंतार खालिस चांदी इमारतों की दीवारों पर मंडने के लिए। The gold of things of gold, and the silver for things of silver, and all manner of work to be made by the hands of artificers, and who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord. और कारीगरों के हाथ के हर किस्म के काम के लिए सोने की चीजों के वास्ते सोना और चांदी की चीजों के वास्ते चांदी है। बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदावंद के लिए मखसूस करे। Then the chief of the fathers and princes of the tribes of Israel, and the captains of thousands and of hundreds, with the ruler of the king's work, offered willingly. तब अबाई खानदानों के सरदारों और इस्राएल के कबीलों के सरदारों और हजारों और सैकड़ों के सरदारों और शाही काम के नाज़िमों ने अपनी खुशी से तैयार होकर and gave for the service of the house of God of gold 5,000 talents, and 10,000 drams, and of silver 10,000 talents, and of brass 18,000 talents, and 100,000 talents of iron. खुदा के घर के काम के लिए सोना 5,000 किंतार और 10,000 दरहम और चांदी 10,000 किंतार और पीतल 18,000 किंतार और लोहा 1,00,000 किंतार दिया। And they with whom precious stones were found gave them to the treasure of the house of the Lord by the hand of Jael the Sereshonite. और जिनके पास जवाहिर थे उन्होंने उनको जेरसूनी यहीएल के हाथ में खुदावंत के घर के खजाना के लिए दे डाला। Then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. तब लोग शादमान हुए इसलिए कि उन्होंने अपनी खुशी से दिया, क्योंकि उन्होंने पूरे दिल से रजामंदी से खुदावंत के लिए दिया था, और दाऊद बादशाह भी नहायत शादमान हुआ। Be blessed by listening and reading scripture. खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत आप सबके साथ हो। Let's pray. आइए दुआ करें। Thank you, Lord Jesus Christ, for this opportunity which you have given unto us. यीशु, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत मौका के लिए जो तूने हमें बख्शा है। And we give thanks for the land which you have given us for your house. आए खुदावंद, इस जमीन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने बख्शी है अपने घर के लिए। Because you are Almighty God and everything is possible with you. क्योंकि तू कादिर खुदा है और सब कुछ तेरे साथ मुमकिन है। And this house is belong to you.
और ये घर तेरा घर है and you are honor and Lord of this house, और तू ही इस घर का मालिक है, बनाने वाला है, and you dwell in this house. और तू इस घर में रहता है। And I believe that this house will be beneficial for many people. और मेरा ईमान है कि ये घर जो है आए खुदावंद बहुत सी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत होगा। And I believe that the life of the people will be transformed because of your presence in this house. और मेरा ईमान है कि लोगों की जिंदगियां आए खुदावंत इस जगह पर इस घर में तब्दील हो जाएंगी And they receive blessings upon blessings. और ये लोग बरकत पर बरकतें हासिल करेंगे। Now you want to speak unto us और अब तू हमसे हम कलाम होने को है, and prepare our hearts and minds हमारे ज़हनों को और हमारे दिलों को तैयार कर आए खुदा, and give us the spirit of wisdom और हमें हिकमत की रूह अता कर and empower us with Holy Spirit so that we can apply your word in all aspects of our life. आए खुदावंद हमें रूहुल कुदस की कुदरत से भर दे और आज के कलाम के मुताबिक हम आए खुदावंद अपनी जिंदगी को बसर करें। And I believe that the Spirit of God is sovereign over us. और मेरा ईमान है कि खुदा का रूह यहाँ पर जुम्बश कर रहा है And anointing for your people. और आए खुदावंद तू एक एक जिंदगी को मस्सा कर रहा है And you will break the bondage and break the barriers of which Satan has erected. आए खुदावंद तू अबलीस के हर तरह के जुओं और बंधनों को अभी इसी वक्त तोड़ेगा। And we give thanks for this is the third day of Thanksgiving. आए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, आज शुक्र गुजारी का तीसरा दिन है And tonight you will speak us and bless us. और आज की रात तू हमसे बात करेगा, हमसे कलाम करेगा। And I believe that your word is precious than silver and gold. और मेरा ईमान है तेरा कलाम सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती है। And cover us with your precious blood. आए खुदा हमें अपने कीमती लहू में छुपा ले And give us wisdom so that we can apply your word in all aspects of our life. आए खुदावंद हमें हिकमत दे और इस कलाम को पर हम अमल करें और अपने जिंदगी के तमाम शोबाजात में तेरी मर्जी से तेरे कलाम के मुताबिक जिएं। And give us the spirit of understanding. आए खुदावंद हमें समझने की रूह अनायत कर। Heavenly Father, I ask in the name of Jesus. आसमानी Amen. बाप तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। First Chronicle chapter 29 पहला तवारीख उसका 29वां बाब and verse 2. और दूसरी आयत। Now I have prepared with all my might for the house of my God the gold for the things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass for the things of brass, and the iron for things of iron, and wood for things of wood, onyx stones and stones to be set, glittering stones, and divers color, and all manners of precious stones and marble stones in abundance. और मैंने तो अपने मकदूर भर अपने खुदा की हैकल के लिए सोने की चीजों के लिए सोना और चांदी की चीजों के लिए चांदी और पीतल की चीजों के लिए पीतल, लोहे की चीजों के लिए लोहा और लकड़ी की चीजों के लिए लकड़ी और कीक की और जड़ाओ पत्थर और पच्ची के काम के लिए रंग बरंग के पत्थर और हर किस्म के बेशकीमत जवाहर और बहुत सा संगे मरमर तैयार किया है। Tonight our topic is Thanksgiving by giving for the construction of church building. आज का हमारा मजमून है
शुक्रगुजारी खुदा के घर में उसकी तामीर के लिए देने से। And when we give thanks God for He has given us, और जब हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जो कुछ वो हमें देता है, King David, he gave for the house of God. दाऊद बादशाह ने खुदा के घर के लिए दिया था। And this is also sort of thanksgiving. और ये भी एक शुक्रगुजारी की तरीका है देने का। And he gave for the house of the Lord. और उसने खुदा के घर के लिए दिया। And he prepared for the house of God. और उसने वो सब कुछ तैयार किया खुदा के घर के लिए। David's preparation was not for himself. और दाऊद की जितनी भी तैयारी थी वो सिर्फ उसके अपने लिए नहीं थी, Not for his house. अपने घर के लिए नहीं थी। He gave for the house of the Lord. उसने दिया खुदा के घर के लिए। And we can say that he put God first. और हम ये भी कह सकते हैं कि उसने खुदा को अव्वल रखा, यानी पहले रखा। So Lord, he put first. तो खुदा को उसने सबसे पहले रखा। And he gave as a token of thanksgiving. और उसने ये बाहैसियत एक शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा को सब कुछ दिया। Because he knew that he was a just shepherd. और वो जानता था कि वो तो सिर्फ एक चरवाहा था। And he has no high profile, high status in the society. और उसका कोई हाई स्टेटस नहीं था मुआशरे में। He was a just shepherd. वो सिर्फ एक चरवाहा था। But it was the mighty hand of God that God exalted him. ये खुदा का कवी हाथ था जिसने उसे बढ़ाया। And he became king of the Israel. और वो इस्राएल का बादशाह बन गया। And God is given him gold and silvers and all things. और खुदा ने उसे सोना, चांदी और बहुत कुछ अता किया था। And God given him a very big house, a palace, as the kings are living in the palace. और खुदा ने उसे बहुत बड़ा घर दिया था, यानी महल दिया था जिसमें बादशाह रहते हैं। He was living in a palace, but he was thinking that God's house must be splendid and beautiful. और वो तो एक महल में रह रहा था, लेकिन उसने ये सोचा कि मेरे खुदा का घर जो है वो बहुत ही खूबसूरत और शानदार होना चाहिए। That's why he had given everything for the house of the God. इसीलिए उसने बहुत कुछ खुदा के घर में खुदा को दिया। And Bible tells us in 1 Chronicle chapter 29 in verse 3, बाइबल बयान करती है पहला तवारीख 29वां बाब उसकी 3री आयत में, moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of my own proper good of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. और चूंकि मुझे अपने खुदा के घर की लो लगी है और मेरे पास सोने और चांदी का मेरा अपना खजाना है, सो मैं उसको भी उन सब चीजों के अलावा जो मैंने उस मुकद्दस हैकल के लिए तैयार की हैं, अपने खुदा के घर के लिए देता हूँ। And this is the token of thanksgiving. और ये है शुक्रगुजारी का तोहफा। And by giving for the house of God, it was a thanksgiving. और खुदा के घर पे देना ही खुदा की शुक्रगुजारी है, Because he loved God. क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत करता था। And those who love money, they cannot give money to God. और जो लोग जो है वो दौलत से और पैसे से प्यार करते हैं, वो खुदा के घर में पैसा नहीं दे सकते। And those women who love ornament and gold ornament, और जितनी औरतें सोने से या अपने जेवरात से प्यार करती हैं, they are not giving to the house of God. वो खुदा के घर पे अपने जेवर नहीं देती। And
And those men who love currency and money, they are not giving to the house of God. ऐसे आदमी जो पैसे से मोहब्बत करते हैं वो पैसा खुदा के घर में नहीं देते। But those whose hearts are filled with the love and affection of the Lord, लेकिन वो लोग जिनके दिल खुदा की मोहब्बत और उसकी शफकत से भरे हुए हैं and they are giving for the house of God, और वो खुदा के घर के लिए देते हैं, because they understand that the God has given them, therefore as a token of thanksgiving they should give to the God. और वो जानते हैं कि ये सब कुछ उन्हें खुदा ने दिया है तो वो खुदा की मोहब्बत में खुदा को देते हैं तोहफे के तौर पर। And Bible tells us that the King David, he gave for everything. बाइबल बयान करती है दाऊद बादशाह ने खुदा के घर में बहुत कुछ दिया। And he gave gold for the things which will made for the gold. उसने सोने के लिए बहुत सा सोना दिया ताकि हैकल में सोने का इस्तेमाल जहाँ जहाँ होता है वो हो। And silver for the things of the silver. और चांदी चांदी की चीजों के लिए। And the stone. और पत्थर। And it means carefully he was thinking about the things which are required for the house of God. और इसका मतलब कि वो बहुत सोच समझ के उसने वो सब चीजें खुदा के घर में दी जिनमें खुदा के घर में जिनकी जरूरत थी। Because he loved Lord. क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत करता था। He loved house of God. वो खुदा के घर से मोहब्बत करता था। And the house of God, he says, that is a palace for the King of the kings. और वो जानता था कि खुदा का घर महल है और वो महल बादशाहों के बादशाह का है। That's why his heart was with God, and therefore he gave to God. इसलिए उसका दिल खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ था और वो खुदा को इफरात से देता था। And Bible tells us that King David was anointed. और बाइबल बयान करती है कि दाऊद बादशाह जो है वो मसा शुदा था। In the Old Testament, the three personalities were anointed. और बाइबल मुकद्दस में तीन शख्सियत जो है वो मसा की गई थी। King was anointed. एक तो बादशाह को मसा किया जाता था। And the second, the prophet was anointed. और दूसरा काहन को मसा किया जाता था। A prophet. नबी को मसा किया जाता था। And the priest. और फिर तीसरा काहन को मसा किया जाता था। They were anointed. उन्हें मसा किया जाता था। And an anointed heart is filled with the gratitude of God. और जो मसा शुदा होते हैं उनके दिल जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी से भरे होते हैं। Because they are anointed. क्योंकि वो मसा शुदा होते हैं। And God has chosen him from among the people. और खुदा उन्हें लोगों में से चुन लेता है अपने लिए। And they are very special in the sight of God. और वो खुदा की नजर में बेशकीमत होते हैं। And they are chosen for the sacred purpose of God. और वो खुदा के मुकद्दस कामों के लिए चुने गए होते हैं। And therefore they love God with their heart, with their mind, and with their strength. और वो खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान से और अपनी पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखते हैं। King David was anointed person. दाऊद बादशाह जो है वो मसा शुदा शख्स था। And that's why he took initiative to give for the house of God. इसीलिए उसने ये शुरुआत की कि वो खुदा के घर में दे। And because he prepared everything for the temple. और इसीलिए उसने हैकल के लिए सब कुछ तैयार किया था। But God did not permit him. लेकिन खुदा ने उसे फिर भी इजाजत नहीं दी थी। And he was not permitted to build a house for God. और वो खुदा ने उसे इजाजत नहीं दी थी उसकी हैकल की तामीर के लिए। And he did not thought that a God has not permitted me, therefore why I should give. और उसने ये नहीं सोचा कि खुदा ने मुझे इजाजत नहीं दी तो मैं खुदा को इतना कुछ क्यों दूं। And he thought, if God has not permitted me, but as a thanksgiving, it is my prime obligation to give to God.
और उसने ये सोचा कि चाहे खुदा ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी घर बनाने की, लेकिन शुक्रगुजारी के तौर पर मैं खुदा को बहुत कुछ दूं। He wanted to participate in the construction work of the temple. और वो खुदा की हैकल के तामीराती काम के लिए उसने जो है शमूलियत हासिल की ताकि वो खुदा को दे। He was an anointed person. और वो मसा शुदा शख्स था। And he prepared everything for the construction of the temple of God. और उसने सब कुछ तैयार किया था खुदा के घर की हैकल की तामीराती काम के लिए। Nowadays you are thinking that my name will not be mentioned in the temple and why I should give. और शायद आप सोच रहे हो कि आपका नाम नहीं मेंशन हुआ तो आप क्यों खुदा के घर में दें। And God has not given me permission to build a house for him. और खुदा ने, आप ये समझ रहे होंगे कि खुदा ने आपको इजाजत नहीं दी तो फिर आप क्यों खुदा को दें। Perhaps you will think that I'm not pastor, why should I give? और शायद आप ये सोचते हो कि मैं तो पास्टर नहीं हूँ तो मैं क्यों दूं। And maybe you are thinking it is a prime obligation of Pastor Nadeem Barkat that he give and only he can do it. और शायद आप ये सोचते हो कि ये तो पास्टर नदीम बरकत की जिम्मेदारी है और सिर्फ उन्हें ही देना चाहिए। But Bible tells us, लेकिन बाइबल बयान करती है, perhaps you are not the one who will build the house, शायद आप वो नहीं है जो तामीर करेंगे खुदा के घर को, but your heart pondering and your heart moved you to participate in the construction work of the house of God. लेकिन आपका दिल जो है वो खुदा से मोहब्बत करता है और आप भी खुदा के घर में देने के लिए शमूलियत हासिल करेंगे। And perhaps you are pastor ordained by God, but it is your prime obligation to take initiative to give for the house of God. और अगर आप पास्टर हैं तो ये खुदा ने आपको, यानी आप शुरुआत करेंगे खुदा के घर में देने के लिए। Perhaps you are not in the congregation of Narrow Gate Ministry. शायद आप नैरो गेट मिनिस्ट्री के जमायत में ये नहीं है, But it is God's house and it is God's work. Therefore, you should contribute in the construction work. तो ये तो खुदा का घर है और खुदा के घर का काम है, तो आप खुदा को इसके काम के लिए, तामीर के लिए जरूर दें। And God will give you a multiple blessing. तो खुदा आपको बेशुमार बरकतों से मामूर करेगा। Because He is Lord. क्योंकि वो ही हमारा मालिक है। So our service to God must be for God and God's work. और हमारा काम जो है वो खिदमत का होना चाहिए और सिर्फ खुदा के लिए होना चाहिए। Bible tells us that David gave to for the construction work. बाइबल बयान करती है कि दाऊद ने खुदा के तामीराती काम के लिए जो है वो दिया। And he gave gold and silver and precious stones. और उसने सोना, चांदी और बहुत से कीमती जो है वो पत्थर दिए। And Bible tells us in First Chronicle chapter 29 and verse 4. बाइबल बयान करती है पहला तवारीख 29वां बाब उसकी 4थी आयत में, Even 3,000 talent of gold. बाइबल यानी 3000 किंतार सोना जो है वो दिया। Of the gold of Ophir and 7,000 talent of refined silver to overlay the walls of the houses withal. सोना जो अफेर का सोना है और 7000 किंतार खालिस चांदी इमारतों की दीवारों पर मंडने के लिए। So a church building is a place where God's people worship. और चर्च की बिल्डिंग वो जगह है जहां पर खुदा के लोग उसकी इबादत करते हैं And pray and hear the word of God. और दुआ करते हैं और खुदा के कलाम को सुनते हैं। And God's people must give willingly and joyfully for the building of a place dedicated to God. और खुदा के घर के लिए लोगों को चाहिए कि वो दिल से और खुदा की मोहब्बत में खुदा के घर के लिए दें।
And Bible tells us that the King David gave and thanked God. और बाइबल बयान करती है कि दाऊद बादशाह ने दिया और खुदा का शुक्र किया। First Chronicle chapter 29 and verse 10. पहला तवारीख 29वां बाब उसकी 10वीं आयत। Wherefore David blessed the Lord before all the congregation, and David said, Blessed be you, Lord God of Israel, for our Father forever and ever. बस दाऊद ने सारी जमायत के आगे खुदावंद का शुक्र किया और दाऊद कहने लगा, आए खुदावंद हमारे बाप इस्राएल के खुदा, तू अब्दुल्लाबाद मुबारक हो। David praised God and prayed to God. दाऊद ने खुदा की तमजीद की, खुदा का शुक्र किया और उससे दुआ की। The majesty of this prayer includes adoration, acknowledgement of the inherent nature of human dependence. और ये जो है, ये बात इससे जाहिर होती है कि दाऊद जो है या इंसान खुदा पर तवक्कल करता है और जो कुछ उसने बख्शा है उसकी शुक्रगुजारी करता है। Self-humiliation, confusion, dedication of all offerings. और हर तरह के हदिया जो है वो खुदा की हजूरी में लाता है। And when he gave, he was not proud, I have given. और जब उसने दिया तो वो फखर नहीं किया उसने कि मैंने इतना कुछ खुदा को दिया है। He humbled वो जो है वो खाकसार हो गया and acknowledged that God has given me, therefore I have given for the sacred work of God. और उसने जाना कि ये सब कुछ मेरे खुदा ने मुझे दिया है और मैं खुदा के मुकद्दस मकाम के लिए ही दे रहा हूँ। And I would like to tell my testimony. मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ। I had a skin cancer in 1995. 1995 में बिशप साहब को स्किन कैंसर था। And oncologist said that I could not survive more than 6 months. ऑन्कोलॉजिस्ट ने यानी उनके डॉक्टर ने कहा कि बिशप साहब 6 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। Because there was cancer in 5 region of my body. क्योंकि इनके जिस्म के 5 हिस्सों में जो है वो कैंसर था। And doctor said I could not survive. और डॉक्टर्स ने कहा कि ये नहीं जिंदा रह सकते। I put faith in Jesus Christ. He is a healer. मैंने यीशु पर ईमान रखा कि वो जो है वो शिफा देने वाला है। And he healed me on 2nd August 1995. और उसने मुझे 2 अगस्त 1995 में शिफा दी। And when he healed me, और जब उसने मुझे शिफा दी, he chosen me as his minister. और उसने मुझे अपने खुदा के बंदे के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए चुना। And I thought if I undergo surgery or the treatment of the cancer, और मैंने ये सोचा कि अगर मैं कैंसर की ट्रीटमेंट से या सर्जरी से गुजरता, so I spend lot of money. तो मैं बहुत सा पैसा खर्च कर देता। But my God healed me without any penny. लेकिन मेरे खुदा ने मुझे किसी भी पैसों के बगैर जो है वो शिफा दे दी। So as a token of thanksgiving, whatever I had, I spent for the house of God. और जितना भी खुदा मुझे देता है, मैं खुदा के घर के लिए बहुत सा देता हूँ। And at that time, whatever in my pocket, whatever in the bank, whatever I had, I spent for the house of God. और उस वक्त मेरे पास मेरी जेब में जितना रुपया पैसा था, बैंक में और भी जितना था, मैंने सब खुदा को दे दिया, खुदा को नजर किया। And I sowed the seed of blessing. और मैंने जो बरकत का बीज जो है वो बो दिया। And it come out with multiple blessings. और फिर वो बढ़ा और मेरी बरकतों से मुझे उसने मामूर कर दिया। And since 95, I have been leading a very healthy life. और 1995 से लेकर अभी तक खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं एक सेहतयाब जिंदगी बसर कर रहा हूँ। And now 2026. और अब 2026 में In 1995, 5 year plus 26, it meant 31 years
past यानी 31 साल मुझे हो चुके हैं that God healed me. कि खुदा ने मुझे शिफा दी. As David gave everything and many things, but I gave everything, including my life. और दाऊद ने भी बहुत कुछ खुदा को दिया और मैंने भी खुदा को सब कुछ दिया, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी. And I could not remain poor. और मैं फिर गरीब नहीं रहा. And I could not be sick. और मैं बीमार नहीं रहा. And God healed me and give me richness of heaven. और खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया, आसमान के दरीचों को खोलकर मेरे लिए बरकत को बरसाया. In the same way, if you sow the seed for the sacred work of God in the field of God, so you will get multiple blessings. इसी तरह से अगर आप बरकत का बीज बोएंगे, खुदा की मुकद्दस मकाम के लिए आप देंगे, तो खुदा आपको बरकतों से मामूर कर देगा. As you can see that I am standing here and sharing the word of God by the power of God. जैसे कि आप देख सकते हैं बिशप साहब खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं बड़ी दलेरी और कुव्वत के साथ खुदा के रूह कुद्दस के मुताबिक. Because health is wealth. क्योंकि जो सेहत है वो ही बड़ी दौलत है. And God has chosen me as his man of God. और खुदा ने मुझे चुन लिया अपने खादिम के तौर पर. So in the same way, if you sow in the field of God and you will receive multiple blessing, you will receive beyond your expectation. इसी तरह से अगर आप बरकत का बीज बोएंगे और खुदा के घर में देंगे, तो खुदा आपकी तवक्कुआत से बढ़कर आपके लिए करेगा, आपको बरकतों से भर देगा. And Pastor Nadeem, he went to Karachi for the theological study, and he was graduated from Michel Sharmin Bible Institute. पास्टर नदीम बरकत जो है वो कराची में गए और वहाँ की सेमिनरी मिशेल शारमन बाइबल इंस्टीट्यूट से इन्होंने सेमिनरी की. Now he is rendering his services in Lahore. और अब वो अपनी खिदमत जो है वो लाहौर में सरंजाम दे रहे हैं. It means if you give God, so God will give you a lot. अगर आप खुदा को देंगे तो याद रखिए कि खुदा आपको बहुत सा देगा. And David was an anointed person. He gave, and then all his fellow men, they gave. और जो दाऊद है वो मस्सा शुदा शख्स था, उसने खुदा को दिया, तो बहुत से लोगों ने भी खुदा के घर में खुदा को दिया. In the same way, if you give, and the many will give. इसी तरह से अगर आप देना शुरू करेंगे तो फिर बहुत से खुदा को देंगे. First Chronicle chapter 29 पहला तवारीख 29वां बाब and verse 6. छठी आयत. Then the chief of the fathers and princes of the tribes of Israel and the captain of thousands and of hundreds with the ruler of the king's work offered willingly. तब अबाई खानदानों के सरदारों और छठी आयत. तब अबाई खानदानों के सरदारों और इस्राएल के कबीलों के सरदारों और हजारों और सैकड़ों के सरदारों और शाही काम के नाज़िमों ने अपनी खुशी से तैयार होकर. Verse 7. And gave for the service of the house of God of gold 5,000 talents and 10,000 dirhams and of silver 10,000 talents and of brass 18,000 talents and 100,000 talents of iron. 7वीं आयत. खुदा के घर के काम के लिए सोना 5,000 किंतार और 10,000 दरहम और चांदी 10,000 किंतार और पीतल 18,000 कंतार और लोहा 1,00,000 कंतार दिया. And Bible tells us they gave willingly. बाइबल बयान करती है कि उन्होंने दिल से और खुशी से खुदा को दिया. First Chronicle chapter 29 and verse 9.
पहला तवारीख 29वां बाब उसकी 9वीं आयत। Then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. तब लोग शादमान हुए इसलिए कि उन्होंने अपनी खुशी से दिया, क्योंकि उन्होंने पूरे दिल से रजामंदी से खुदावंद के लिए दिया था। और Perhaps you give someone, but your heart will not be rejoiced. कभी कभार आप किसी को कुछ देते हैं, तोहफा या कुछ भी, तो आपका दिल खुश नहीं होता देते हुए। But if you give God for God's work, for the house of God, you will be filled with great rejoice. अगर आप खुदा को देंगे, खुदा के घर के लिए देंगे, तो आपका दिल जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी से और खुशी से भर जाएगा। And happiness and rejoice will be in your life. और शादमानी और खुशी आपकी जिंदगी में होगी। And your heart will be changed, your life will be changed, your family will be changed. आपका दिल तब्दील हो जाएगा, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, आपका खानदान तब्दील हो जाएगा। Because God give you happiness. क्योंकि खुदा आपको खुशी अता करेगा। Sometime you will be happy to receive, कभी कभार आप जब लेते हैं चीज तो बड़े खुश होते हैं, but you will be rejoiced, and there will be a great happiness when you give for the house of God. आप नहायत खुश और शादमान होंगे जब आप खुदा के घर में देंगे। And Bible tells us that when Moses said to the Israelites for the tabernacle, बाइबल बयान करती है जब मूसा ने बनी इस्राएलियों को कहा खेमा इज्तिमा में देने के लिए, when God commanded Moses to build the tabernacle, the people brought offerings of gold, silver, fabric, wood and skilled labor. और जब खुदा ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएलियों को कहे कि वो खुदा के खेमा इज्तिमा के लिए सोना चांदी दें, They gave generously, and Moses eventually told them to stop bringing. और वो जो है वो दिल की खुशी से वो इतना देते रहे कि मूसा ने उन्हें खुद ही कहा कि बस अब देना बंद कर दें। Exodus chapter 35, खरूज 35वां बाब verse 20. 20वीं आयत। And all the congregation of the children of Israel departed from the presence of Moses. तब बनी इस्राएल की सारी जमायत मूसा के पास से रुखसत हुई। So Bible tells us that God commanded Moses for tabernacle. और बाइबल बयान करती है कि खुदा ने मूसा से कहा कि खेमा इज्तिमा के लिए, Chapter 35 and 4th verse. 35वां बाब उसकी 4थी आयत। And Moses spoke unto all the congregation of the children of Israel, saying, This is the thing which the Lord commanded, saying. और मूसा ने बनी इस्राएल की सारी जमायत से कहा, जिस बात का हुक्म खुदावन ने दिया है वो ये है कि Take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever is of willing heart, let him bring it, an offering of the Lord, gold and silver and brass. तुम अपने पास से खुदावंद के लिए हदिया लाया करो, जिस किसी के दिल की खुशी हो वो खुदावंद का हदिया लाए, सोना और चांदी और पीतल। So it means God is accepting those who are offering willingly. और इसका मतलब कि खुदा उन्हें कबूल करता है जो दिल की खुशी से खुदा को देते हैं। And Bible tells us that they bring everything for the tabernacle. और बाइबल बयान करती है कि खेमा इज्तिमा के लिए वो खुदा की हजूरी में बहुत कुछ लाए। And they brought it. और वो लेकर आए। Everything. सब कुछ लाए। So because their heart was filled with the gratitude
क्योंकि उनका दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। And Bible tells us that they love God, और बाइबल बयान करती है कि वो खुदा से मोहब्बत रखते थे, and therefore they brought everything. इसीलिए वो खुदा के घर में खुदा के लिए सब कुछ लाए। And those who were able to do something, they rendered their services for the tabernacle. और जितने भी खुदा को देना चाहते हैं वो खेमा इज्तिमा में खुदा के लिए लाते हैं। It means that we must give for the house of God as a thanksgiving. इसका मतलब कि हमें खुदा के घर में शुक्रगुजारी के तौर पर हदिये और खुदा के लिए बहुत कुछ लाना है, Because God has filled our house with treasure. क्योंकि खुदा अपने खजाने से अपने घर को भरता है। And therefore we should give for His work. और हमें इसीलिए खुदा के काम के लिए देना है। And initiative was taken by the anointed person of David. और जो खुदा का मसा शुदा शख्स है दाऊद बादशाह, उसने पहल की खुदा के घर में देने की। And others followed him. और दूसरों ने फिर उसी तरह से दिया। And everything was prepared for the construction of the house of God. और सब कुछ तैयार हो गया खुदा के घर को तामीर करने के लिए। And as a thanksgiving that God has given you life and all things related to the life. और इस बात की शुक्रगुजारी के लिए कि खुदा ने आपको जिंदगी बख्शी है और बहुत कुछ आपको जिंदगी में दिया है। And He has given you a family, and He has given you peace of mind. और खुदा ने आपको एक अच्छा खानदान बख्शा है और आपको ज़हनी सुकून अता किया है। And God has given you a lot of money. Therefore, it is your obligation to contribute in the work of the house of God. और खुदा ने आपको बहुत सा रुपया पैसा दिया है, तो आप खुदा के घर में उस रुपया पैसा को लाएं जो खुदा ने आपको दिया है। As you sow, so shall you reap. और जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। If you are not sowing, you will not reap. अगर आप नहीं बो रहे तो फिर नहीं काटेंगे। But tonight is the night of blessings for you. और आज की रात आपकी बरकतों की रात होगी। And when you give to God, so God will accept it, and more than your expectation, He will return to you. और जब आप खुदा को देंगे तो आपकी तवक्कुआत से बढ़कर खुदा आपको और बढ़कर और ज्यादा देगा। And Bible tells us that the King Solomon is offered sacrifices more than when he 1,000 sacrifices he offered. और बाइबल बयान करती है सुलेमान बादशाह ने खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानी और बहुत सारी हजार शुक्रगुजारी की कुर्बानियां उसने गुजरानी। And he became the king, and God said the money you would have, and no king in the past and no in the future will be rich as you will be. और खुदा ने सुलेमान बादशाह को इस कदर बरकत दी कि खुदा ने उसको कहा ना ही माजी में कोई बादशाह था जिसको इतनी दौलत मिलेगी और मिली थी, और ना ही मुस्तकबिल में कोई बादशाह होगा जो तुझ जैसा दौलतमंद होगा। God is same yesterday, today and forever. हमारा खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है। As you do in accordance to the word of God, you will receive multiple blessings. जब आप खुदा की मर्जी के मुताबिक उसके कलाम पर अमल करेंगे तो आप ढेरों बरकत हासिल करेंगे। And if you put first priority to God, so God will give you whatever is in your heart. और अगर आप खुदा को अव्वल तरजीह देंगे तो खुदा आपके तमाम जो है वो ख्वाहिशों को पूरा करेगा। And King David, he gave
everything for the house of God. दाऊद बादशाह ने खुदा के घर के लिए सब कुछ दे दिया। And after him, his son Solomon became king. और उसके बाद उसका बेटा सुलेमान जो है वो बादशाह बना। And still his a kingdom is continued और अभी तक उसकी बादशाहत जो है वो जारी है, because Jesus is in his tribe. क्योंकि जो मसीह है वो ही उसका कबीला है। And his kingdom is not ceased. His kingdom is continued, and he is a king of the king. और उसकी जो बादशाहत है वो रुकी नहीं है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। Because he gave first priority to God and the house of God. क्योंकि उसने अव्वल तरजीह खुदा को दी और उसके घर को दी। And God retained his house and his kingdom. और खुदा ने उसकी जो बादशाहत है उसको बढ़ाया और उसे बरकत बख्शी। And if you give for the house of God, God will bless you as well as your offspring. और अगर आप खुदा के घर में देंगे तो खुदा ना सिर्फ आपको बरकत देगा बल्कि आपकी नस्लों को भी बरकत बख्शेगा। You give as a thanksgiving. आप शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा को दें, And God will give you beyond your expectation. तो फिर खुदा आपको आपकी तवक्को से बढ़कर बख्शेगा। And close your eyes. आए अपनी आंखों को बंद करें। When David gave, and David said, who is prepared to give willingly for the God's house? दाऊद ने कहा कि कौन है जो खुदा के घर में देगा, And willingly and rejoicingly. और शादमानी से, खुशी से और रजामंदाना तौर पर। And you can see your life. आप अपनी जिंदगी को देखें And put God first, and put the God house first. और खुदा को अव्वल तरजीह दें और उसके घर को अव्वल तरजीह दें। And prepare your heart for giving and receiving the multiple blessings. और आप खुदा को दें ताकि खुदा आपको ढेरों बरकत से भर दे। And it is biblical principles that give and it will be given to you. और ये ही बुनियादी किताबे मुकद्दस की बातें हैं कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। And if you are prepared for the God's work, so do it. अगर आप खुदा के काम के लिए तैयार हैं तो फिर खुदा को दें। And you can receive blessings for yourself and for your family and your offsprings. तो फिर आप अपने लिए भी बरकतें हासिल करेंगे, अपने खानदान के लिए और अपनी नस्लों के लिए भी बरकतें आपको मिलेंगी। And see your life. अपनी जिंदगी को परखें। And this is the house of God. ये खुदा का घर है। And your heart is pondering, and your God and Holy Spirit is moving your heart to contribute for the sacred work of God. और खुदा आपके दिलों को उभार रहा है ताकि आप खुदा के मुकद्दस काम के लिए खुदा को दें। And I believe that it is an opportunity for receiving the multiple blessings, and God will open his heaven. और मेरा ईमान है कि खुदावंद इसके वसीला से आपको बरकत बख्शेगा अपने आसमान के दरीचों को खोलकर। Thank you, Lord Jesus Christ, यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं for your word and for your presence. तेरे कलाम के लिए और तेरी हजूरी के लिए। And Holy Spirit, we give thanks for your presence, and you have moved every heart. आए पाक रूह, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने बहुत से दिलों को जो है वो उभारा है। Heavenly Father, we give thanks for your begotten Son which you have gifted for us. आए खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे इकलौते बेटे के लिए जो तूने हमें बख्श दिया, And his atonement और उसके कफारा के लिए। is our Redeemer. वो हमारा बचाने वाला
है and through his sacrifice we are saved. और उसकी कुर्बानी से ही हम बचे हैं। And we give thanks for this land which you have given to the Narrow Gate Ministry for the church building. और हम इस जमीन के लिए जो नैरो गेट मिनिस्ट्री है उसकी बिल्डिंग के लिए आए खुदा तूने ये जो जगह दी है इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। And tonight is the third night, third day we have been giving thanks to you. और आए खुदावंत आज तीसरी रात है जब हम तेरी शुक्रगुजारी कर रहे हैं इस जगह के लिए। And I believe that you have opened your heaven. और मेरा ईमान है कि तूने अपने आसमान को खोल दिया है To fulfill all needs. तमाम तर जरूरियात के लिए Through your glory. अपने जलाल के वसीला से Bless your people. अपने लोगों को बरकत बख्श, Touch their hearts. इनके दिलों को छू ले। And you have broken the bondage of your people and paved the way for the blessings and receiving blessings. आए खुदावन तूने इनके दिलों को छू लिया है और तू इन्हें उभार रहा है ताकि ये आए खुदावन तेरी बरकतों को हासिल करें। And I believe as King David, who was anointed, your anointed pastors and anointed minister, you have opened their hearts. आए खुदावन जिस तरह तूने दाऊद बादशाह के दिल को उभारा था इसी तरह से तूने यहाँ पर भी मसा किए हुए खादमों के दिलों को उभारा है। And you have opened the heart of the elders, deaconesses, evangelists and all the Christian workers. और तूने यहाँ पर तमाम तर एल्डर, डीकन, मुबशराओं, खादमों के दिलों को उभारा है। And I believe that you, Holy Spirit, has moved the heart of the congregation. और आए खुदा मेरा ईमान है कि रूहुल कुद्दस ने इस तमाम जमायत के दिलों को जो है वो उभारा है That they will give for the sacred work of God. ताकि ये खुदा के मुकद्दस काम के लिए दें। And you have a plan of blessings for your people. और तेरा मंसूबा है बरकतों का, अपने लोगों को बरकतें बख्शने का। I believe you will bless them. और मेरा ईमान है कि तू इन्हें बरकत बख्शेगा। You will bless Pastor Nadeem Barkat and all his team. तू आए खुदावन पास्टर नदीम बरकत को और इनकी टीम को बरकत बख्शेगा। And I believe that a beautiful and splendid building will be built here in this place, and this will be the palace of King of the King. आए खुदा मेरा ईमान है कि ये जगह जो है ये एक शानदार बिल्डिंग बन जाएगी, खूबसूरत बिल्डिंग बन जाएगी और ये महल जो है वो तुझ बादशाहों के बादशाह का महल है। And you will dwell in this palace, and the many will come and they receive blessings upon blessings from here. और तू इस जगह पर चलता फिरता नजर आएगा और आए खुदावन तू इस जगह पर तख्त नशीन रहेगा और लोगों को इस जगह से बड़ी बरकत मिलेगी। Heavenly Father, I ask in the name of Jesus, Amen. आसमानी बाप तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।